big target, big talk, big speech, big thing. Production is 6. What a production. वो हिंदी में है ना, बंगाली में बोलता है, पर्वत का मुसिक प्रसव. पर्वत has given the birth of the rat. যে বাংলায় আছে তো বাংলাটা তো অন্তত তুমি বুঝেছো তাহলেই হবে. বাংলাটা বাংলার মানুষ বুঝুক, বাংলাটা বাংলার মানুষ বুঝুক. পর্বতের মুশিক প্রসব করছে রেলমন্ত্রী, বাংলাটা বাংলার মানুষ বুঝুক. এভরিডে multifunctional complexes. Total 196 stations were identified for development of multifunctional complexes. In 2024, Indian Railway refocused on developing multifunctional complexes at various railway stations. No action has been taken so far for grant of lease of land for development. Every day, number of train runs, an average of 17,000 trains in 2010-2011. Now, in 2025-26, when Vande Bharat, Amuk Bharat, Tomuk Bharat, now it is now an average of 13,198 trains. 2010-11, 17,000, now 13,198 trains. Average carrying passengers per day, 2021 to 10-11, 23 million. This included 11.99 million non-suburban passengers with 4.47 million in reserve categories. Now 2025-26, 14 years have gone, 15 years have gone. Standing in the same place, standing in the same place, I am here, I am here. What is that 23 million? This is Railway Minister. Standing in the same place, I will not proceed. আমি এগোবো না ভাই, আমি এগোবো না, আমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবো কিন্তু বুকে বক্তৃতা মারবো. Covering total kilometers, 2010-11, 64,015 kilometers. 2025-25, 1,20,000 kilometers. But the major problem faced by Indian Railways is that the tracks are old and outdated. It lacks repair and maintenance of tracks and bridges. Safety device introduced. Anti-collision deviation and train protection warning system was introduced in 2010-11. Now in July 2020, the cover system was officially adopted by Indian Railways as a national automatic train protection system. Out of 15,072 locomotives, only 687 locos and only 521 stations out of 7,461 railway stations are having covered safety project system as on 2025-21. Security of women passengers, 2010-2011, 12 companies of women RPF personnel to be named Mahila Bahini introduced in 2011. 2025-26, 223 groups of married Swahili renamed in October 2020, reducing 12 companies to 700 RPF personnel women. हम महिला के लिए लड़ते हैं, महिला के लिए लड़ता है, यही महिला के लिए लड़ता है. कुछ नहीं करता, सिर्फ बात ही करता है. শুধু কথা বলে, শুধু কথা বলে, কাজ করে না, কাজের নামে নেই. হ্যাঁ, তো হাউস পল ওই তো রেখাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল. রেখাজি, রেখাজি কি হলো? তো মোদিজির রেখাজি কি হলো? নেই. ওয়েলফেয়ার টু রেলওয়ে, হাউস ফর অল টু অল রেলওয়ে employees in the next 10 years with the help of Ministry of Urban Development. 2025-26, no such action proposed. Central Staff Benefit Fund raises from rupees 350 per employee to rupees 300. आज भारतीय रेल बहुत आगे बढ़ रहा है, पर जितना भारतीय रेल आज आगे बढ़ रहा है उतना ही यूपी अलायंस के कार्यकाल में पीछे था. अगर उनके कार्यकाल की बात करें तो बॉलीवुड फिल्म एक है द बर्निंग ट्रेन, उसको याद आता है क्योंकि द रेलवे was burning with losses and was on the road to become bankrupt. ये मैं नहीं कह रही, ये इन्हीं के कार्यकाल में कमेटी का गठन किया गया था, हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अनिल काकोडकर. उनके कमेटी के रिपोर्ट में पेज नंबर 6 पर लिखा था, द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ इंडियन रेलवेज इज एट द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स अनलेस सम कॉन्क्रीट मेजर्स आर टेकन. सर, बिहार की बेटी है, हमेशा बिहार के बारे में बात करते हैं. बिहार ने इस देश को 8 रेल मंत्री दिए हैं. हमें गर्व होता है ये कहने पर कि हमारे नेता, हमारे संस्थापक
मध्य रामविलास पासवान जी भी भारत के रेल मंत्री रह चुके और भले ही उनका कार्यकाल छोटा रहा हो, पर उन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए जैसे आईआरसीटीसी की स्थापना हो, असम में बोगीबिल ब्रिज हो या फिर एक अलग हाजीपुर डिवीजन तैयार करना हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी रेल मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने भारतीय रेल को एक नई दिशा और दशा दोनों दिया है। उनके कई ऐतिहासिक निर्णय हुए थे जिनकी सराहना आज भी की जाती है। रेलवे सेफ्टी को प्राथमिकता देते हुए इंडियन रेलवेज को मॉडर्नाइज करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया था। 17,000 करोड़ का सेफ्टी कॉर्पस फंड की स्थापना की थी, जिससे पटरियों पे, पुलों पे और सिग्नलिंग सिस्टम के नवीनीकरण का कार्य तेजी से प्रारंभ किया गया था। एलएचबी कोच, जो जर्मन एलएचबी कोचेस थे, उसका भी निर्णय उन्हीं के ऐतिहासिक कार्यकाल में किया गया था। अगर हम बात करें तो रेलवे में आज भी उनके विजनरी लीडरशिप की सराहना की जाती है। हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री लालू यादव जी भी रेल मंत्री रह चुके थे, पर जब उनके कार्यकाल की बात करें तो ये सही मायने में ये कह सकते हैं कि तब भारतीय रेल विनाश की पटरी पर चल रहा था। तेल हो, रेल हो या खेल हो, इंडिया अलायंस वालों ने कहीं भी भ्रष्टाचार का कोई मौका नहीं छोड़ा है। उनके अगर रेलवे मॉडल की बात करें तो यह कहना सेफ रहेगा कि उनके कार्यकाल में ट्रेन ट्रैक पर कम चलता था और ट्रैक पर घोटालों की कहानियां ज्यादा चलती थी। पूर्व के मुख्यमंत्री और रेल मंत्री रह चुके लालू यादव जी ने इसी सदन में एक बात कही थी, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। इसी सदन में उन्होंने ये बात की थी, पर हम आभार व्यक्त करेंगे हमारे रेल मंत्री का, जिन्होंने बिना मांगे बिहार को इतना कुछ दिया है। यूपीए के कार्यकाल से तुलना करें, हमेशा जब अपने कार्य के बारे में लोग बात करते तो तुलनात्मक तरीके से बात किया जाता है। तो यूपीए अलायंस से अभी एनडीए की सरकार में बजट बिहार का जो रेलवे बजट है वो 9 गुना बढ़ चुका है। यूपीए के कार्यकाल में बजट था 1132 करोड़, मात्र 1132 करोड़। आज बिहार का रेलवे बजट 10,066 करोड़ हो गया है। अगर हम बिहार में रेलवे बजट की बात करें तो 90,000 करोड़ के निवेश से वहां पे काम किया जा रहा है। 1783 किलोमीटर में कवच मतलब एंटी कोलिजन सुरक्षा जो है वो प्रणाली स्थापित की जा रही है। 5,346 किलोमीटर में नई रेल लाइन की स्थापना की जा रही है, दोहरीकरण हो रहा है। और अगर आमान परिवर्तन का बात करें तो 97 परियोजनाएं प्रगति पर हैं। आज 3,164 करोड़ की लागत से 58 रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसमें हमारे समस्तीपुर लोकसभा का जो समस्तीपुर डिवीजन का समस्तीपुर स्टेशन है वो भी अब एक अमृत स्टेशन बन रहा है। आज बिहार में 12 वंदे भारत चल रहे हैं जो 15 जिलों में 22 अनोखे स्टॉपेजेस दे रही है। दरभंगा में आनंद विहार टर्मिनल है जिसके बीच अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही है जो 4 जिलों में 11 महत्वपूर्ण स्टॉपेजेस देती है। अगर हम बात करें तो 2014 से अब तक बिहार में 1832 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जा चुकी है जो मलेशिया के पूरे रेल नेटवर्क से बड़ी है। और तो और सबसे ऐतिहासिक काम जो हुआ है वो 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन बिहार में, उस काम को पूरा किया जा चुका है।